हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रिचा, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। होप आपने एक्सरसाइज 1 का वीडियो देखा होगा और उन क्वेश्चंस को रिपीट भी किया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास आई एम डूइंग 2.2। लेट्स डू इट। This is question number 1. X by 2 minus 1 by 5 equals to x by 3 plus 1 by 4. बेटा as I have already told you, जो variables वाली terms हैं उनको हम एक side पे shift करेंगे and all the constant will be shifted to the other side. So x by 2 and x by 3, these two terms are the terms with variables. Then x by 3 is in plus here, so it will become minus x by 3. 1 by 4 as it is as its place. And minus 1 by 5 will transpose to the other side and become plus 1 by 5. Now taking LCM, आपको पता है fractions वाली जो terms होती हैं उनको add या subtract करने के लिए we have to take the LCM. So 2 and 3, LCM will be 6. So multiplied by 3 and multiplied by 2, that is 3x minus 2x. Other side 4 and 5 का LCM will be 20. You can take the LCM also in rough if you don't calculate it directly. ठीक है, multiplied by 5 multiplied by 4, so 5 plus 4. 3x minus 2x will be 1x upon 6. 5 plus 4 9 upon 20. Now in this case you can do cross multiply also. This method we have already discussed in the last class. 1x multiply by 20, 6 into 9, right? Now 1x will be here only, 20 will get transposed to the other side, 6 by 9 by 20. Now we will reduce it. 1x is equal to 6 into 9 by 20. We can cancel it. 2 3s are 6, 2 1s are 2, that is 10. 3 9s are 27 upon 10. 1x or x are the same thing. So value of x will be 27 by 10. Hope this is clear to you. Now moving on to the question number 2. Question number 2 is 9 by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equals to 21. As I told you before that these three are fractional terms, so we have to take the LCM. 2 4 and 6, इन तीनों का LCM लेंगे बेटा 12. 2 6 are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12. Then 6 into n, 6n minus 9n plus 10n equals to 21. 6 minus 9 is minus 3. Minus 3 plus 10 is 7n. 7n upon 12 equals to 21. Now 12 is in division here, so it will transpose to the other side and becomes in multiply 12. ठीक है? And now लिविंग एंड हेयर 7 मल्टीप्लाई में है, तो आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. 21 into 12 by 7. नाउ व्हेन वी कैन रिड्यूस इट फर्दर. 7 1s are 7, 7 3s are 21, so n will be 3 into 12 by 1, so n will be 36. This will be the answer of second part. Very easy, बस एलसीएम लेना था. ऑलरेडी इसमें जो आपकी वेरिएबल्स वाली टर्म्स थी वो लेफ्ट साइड पर ही थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रांसपोजिंग की जरूरत नहीं पड़ी. नॉर्मली आपने सॉल्व किया लेफ्ट साइड राइट साइड एंड आंसर कम एज 36. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है बेटा? x plus 7 minus 8x by 3 equals to 17 by 6 minus 5x by 2. As you can see, x and x, these three terms are the variable terms, so we will shift it to the one side. x and minus 8x by 3 is as it is because ये दोनों terms तो यहीं पर थी. minus 5x को हम ट्रांसपोज करेंगे, so plus 5x by 2 हो जाएगा. plus 5x by 2. 17 by 6 is already in the right side, but 7 will transpose to the other side and plus 7 will become -7. ठीक है, so 3 and 2 5 टर्म्स थी, यहाँ पे भी 3 and 2 5 टर्म्स हैं, सिर्फ ट्रांसपोज किया है. x को आप x by 1 भी ले सकते हैं. LCM is 6, इन तीनों का LCM होगा 6. 1 6 are 6, 3 2s are 6, 2 3s are 6, so 6x minus 16x plus 15x. This will be the solution of the left side. Here also we will take the LCM beta. 6
6 1 जा 6, 1 6 जा 6, 17 minus 42. Now solving it further, 6x minus 16x will become minus 10x, minus 10x plus 15x. चलो मैं लिख देती हूँ थोड़ा, it will be clear to you. ठीक है, 17 minus 42 by 6. Now minus 10x plus 15x will become plus 5x. प्लस 5x, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा 5x by 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 by 6. ठीक है, अच्छा ये जो 6 है आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाओ और 6 और 6 को कैंसिल कर दो, या फिर फर्दर इसको इजी कैलकुलेशंस के लिए ध्यान रखो इक्वल्स टू के दोनों साइड पर अगर एक एक ही डिनोमिनेटर है और वो दोनों सेम है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये यहां पर भी जाएगा मल्टीप्लाई में तो भी 6 and 6 कैंसिल ही होगा. ठीक है, 5x 17 माइनस 42 इज 25, सो माइनस 25 बिकॉज 42 पर माइनस का साइन है. x विल बी हियर ओनली, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, इट यू विल रिड्यूस इट फर्दर, आंसर विल बी x माइनस 5. दिस इज इजी. अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे, लीनियर इक्वेशंस इजी नहीं है बट यू नीड प्रैक्टिस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया है x माइनस 5 बाई 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 5. बेटा इसको करने के दो तरीके हैं. एक तरीका यह है कि आप 3 डिनोमिनेटर को x के साथ भी लिख लो, 5 के साथ भी लिख लो. x बाई 3 माइनस 5 बाई 3, x बाई 5 माइनस 3 बाई 5. ठीक है, दिस इज द वन वे. अदर वे इज दिस, जो क्रॉस मल्टीप्लाई का मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली, तो वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं बेटा, देखो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x और 3 को एज इट इज रहने देंगे. ये गलत है. आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म से, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन से. सो 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3. ठीक है, उसको ब्रैकेट में रखेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 25, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 9. ठीक है, नाउ ट्रांसपोजिंग एंड कीपिंग ऑल द वेरिएबल टर्म्स टू वन साइड एंड ऑल द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड. 5x माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में आएगा, माइनस 9 एज इट इज रहेगा. मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में आप माइनस साइन आधे बच्चे तो हटा ही देते हैं, वेरी बैड. माइनस 9 इज विल बी देयर ओनली लाइक दिस. माइनस 25 विल बिकम प्लस 25, 2x एंड प्लस 16. x विल बी 16, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 8. सो x value of x is 8 in question number 4. Now question number 5. This is the question बेटा जो देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन इसको अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप करें और थोड़ा सॉर्ट आउट करके करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. इस क्वेश्चन को मैं आपको उस वे से बताऊंगी जो मैं लास्ट क्वेश्चन में बता रही थी. आप क्या कर सकते हैं, देखो एज यू नो कि ये जो 4 डिनोमिनेटर है ये 3t के साथ भी है और -2 के साथ भी, तो हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं 3t बाई 4 एंड -2 बाई 4. ठीक है, फिर बिकॉज दिस टर्म, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई टर्म माइनस साइन के बाद लिखी है तो आप उस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइनस साइन जब बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये 2t ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन में है, इसका साइन माइनस नहीं है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है. ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म्स हैं दोनों, इनके साइन अपने पॉजिटिव साइंस हैं. सो आपको क्या करना है, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं नेगेटिव साइन वाला, आपको नेगेटिव साइन और ब्रैकेट के साइन ये दोनों हटा देने होते हैं और नंबर्स के जो साइन है उनको ऑपोजिट कर देना है. माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. क्या क्या रिमूव करना है, माइनस साइन और ब्रैकेट्स के साइन. ठीक है, तो ये और ये मैंने हटा दिया. यहाँ पे प्लस 2t है उसको -2t
बाई 3 लिखा, और ये +3 है, इसको भी मैंने 3/3 लिखा, ठीक है। सो 2/3 - t। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये जो अब इसमें से मैं वेरिएबल टर्म सारी एक्साइड करने वाली हूँ। 3t/4 माइनस, टिक कर लो बेटर है, -2t/3, एंड ये जो t है ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2/3 प्लस 3/3 एंड प्लस 2/4, क्लियर। नाउ वी विल टेक एलसीएम। 4 and 3 and 1 का एलसीएम विल बी 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 को 4 से एंड 1 को 12 से। 3 3 9। ये भी गलती बहुत बार करते हैं बच्चे सब, मैम भी कर देती हैं कभी कभी। 3 3 90, -2 × 4 इज -80 प्लस 12t, ठीक है। इधर भी 4 3 3 का एलसीएम 12 ही आएगा बेटा। 3 × 4 3 × 4 4 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। 2 4 8 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, अगर दोनों साइड सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर है और वो सेम है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द इक्वेशन लेफ्ट इज 90 - 80 प्लस 12t इज इक्वल टू 8 + 12 + 6। 90 - 80 is 1t, 1 + 12 is 13t, 12 + 8 is 20, 20 + 6 is 26. 13 is in multiply here, so it will go in divide here. When we reduce it further, it will become 2. So answer is 2. This question, if you do in this way, अगर आप उसको ब्रेक कर लेते हो और एक बार समझ लेते हो माइनस साइन प्रॉपरली, ये माइनस साइन का तो ध्यान ही रखना है। माइनस साइन कभी भी किसी टर्म जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन से पहले है तो उस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखो और पूरा साइन चेंज करो। एज वी मूव फर्दर, अगर कोई और क्वेश्चन आएंगे तो और आगे भी करते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इट, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।